Hi, you're watching CVR News. This is Havila Kottapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, moving into the details, at the Kashi Tamil Sangamam 3.0 in Varanasi, External Affairs Minister Dr. Jaishankar emphasized India's historical role as a global source of technology and its effort to reclaim that position. He highlighted the significance of the new education policy in preparing people for modern challenges. Citing space technology as an example, he noted that much of India's space industry is driven by young innovators. He also referenced Prime Minister Narendra Modi's recent participation in the AI Summit in Paris, underscoring India's growing focus on artificial intelligence and emerging technologies. So you're asking historically or now? I think to be anything there are provisions. Today, I think the relationship between India and world, and when we go to the next stop, I think to the ambassadors, I should say, to the Institute of Technology, we will hear more about it. We have historically been a source of technology for the world in the earlier times. I think today we are trying to recover that again. And part of what we are trying to do through NEP, New Education Policy, is to prepare people for the challenges of the new world. One area where we can show that already is space. That you can see in space, a lot of our space industry is driven by very young people, startups, people who are still studying in degrees who are contributing to the space program. But we can see it in drones. Some of you visit universities. I'll be happy next time I go to a university to take them. Many universities today have drone programs. So when we look at AI, Prime Minister just came from the AI Summit in Paris. So these are all areas. I am very confident that, if we make that effort, India keeps growing, we concentrate on developing the talent of our people, our people with the history and tradition that they have, will be able to. So you're asking historically or now? I think to be anything there are provisions. Today, I think the relationship between India and world, and when we go to the next stop, I think to the ambassadors, I should say, to the Institute of Technology, we will hear more about it. We have historically been a source of technology for the world in the earlier times. I think today we are trying to recover that again. And part of what we are trying to do through NEP, New Education Policy, is to prepare people for the challenges of the new world. One area where we can show that already is space. That you can see in space, a lot of our space industry is driven by very young people, startups, people who are still studying in degrees who are contributing to the space program. But we can see it in drones. Some of you visit universities. I'll be happy next time I go to a university to take them. Many universities today have drone programs. So when we look at AI, Prime Minister just came from the AI Summit in Paris. So these are all areas. I am very confident that, if we make that effort, India keeps growing, we concentrate on developing the talent of our people, our people with the history and tradition that they have, will be able to. So you're asking historically or now? I think to be anything there are provisions. Today, I think the relationship between India and world, and when we go to the next stop, I think to the ambassadors, I should say, to the Institute of Technology, we will.
In Chatpur, Madhya Pradesh, Chief Minister Mohan Yadav expressed gratitude for Prime Minister Narendra Modi's visit, stating that his presence was a blessing for development work. He emphasized the temple should also contribute to development and have a distinct role in the society, highlighting the establishment of the Cancer Research Centre. Yadav praised the initiative as a visionary step, and he further acknowledged Maharaj Jia's commitment to advancing healthcare by pledging to establish a medical college, calling it the biggest gift for Bandukilal. सरकार के आनंद का, उत्साह का, उमंग का और खासकर बुंदेलखंड की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं एक बार अपनी ओर से, सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बोले बागेश्वर धाम की, महाराजा छत्रसाल की। आज यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री का जब आगमन हुआ है, उसके साथ साथ सारा संत वृंद अपना आशीष देने के लिए, आज का दिन तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, इतना भव्य धाम अपना जगमगा रहा। इंद्र का इंद्रासन भी आज अलग प्रकार से कहीं न कहीं थोड़ी ईर्ष्या कर रहा होगा। हमारे बीच परम पूज्य जगत गुरु साध्वी दीदी, चिदम्बरम महाराज साहब, सभी संत वृंद, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गवर्नर साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जब विराजमान है, मैं थोड़ी धृष्टता के साथ कह रहा हूं कि हमारे लिए वास्तव में ये बुंदेलखंड के प्रति पहली बार हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का इतना स्नेह कि हमारे लिए पहले यहाँ ये बुंदेलखंड की धरती यशस्वी प्रधानमंत्री के आने से केन बेतवा नदी के माध्यम से पूरे क्षेत्र के लिए जल की इतनी बड़ी सौगात दी, वाकई अद्भुत दी है। हमारा पूरा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का मिला करके स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उस भावना को लेकर के, जो वास्तव में बुंदेलखंड लोग हमारे लिए बात अपने आन बान शान की हो तो प्राण की बाजी लगा करके वीरता का नया प्रतिमान बना सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति की मार थी, जहां सूखा पड़ता था, वहां आपके आशीर्वाद से सुखी रहने का आशीर्वाद मिला है। ये आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है। और उससे बड़ा दो राज्यों के बीच, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, एकमात्र ये वाकई स्वर्णिम काल चल रहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनके कारण, आपके कारण से सभी राज्यों के बीच ये अनावश्यक झगड़े और ये इनके बीच पानी के बंटवारों को लेकर पूरे दुनिया भर में भारत की खराब छवि बनती थी। लेकिन आपने ये परस्पर समन्वय पे आशीर्वाद देते हुए, और आशीर्वाद के लिए भी कितना बड़ा आशीर्वाद, केन बेतवा नदी का 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 90,000 करोड़ आप दे रहे हो, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये वाकई बहुत अद्भुत समय चल रहा है सरकार के। In Haridwar, Uttarakhand, CM Pushkar Singh Dhami praised the large turnout of devotees taking a holy dip at the Sangam during the Mahakumbh 2025. He dismissed rumors questioning the water quality, stating that some individuals aim to harm spirituality and religious traditions. He also criticized certain leaders for being unable to accept the success of Mahakumbh. Dhami also commended the excellent arrangements made for the event under the leadership of PM Modi and UP CM Yogi Adityanath. चल रहा है गंगा जल को लेकर, संगम को लेकर बवाल चल रहा था। देखिए, इतने करोड़ों लोगों ने वहाँ संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहाँ मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से मां गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। सर, पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान चलाया है।
देखिए, जो लोग कार सेवकों पर गोली चलाते रहे हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों ने देखा है किस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, गरीबों पर, महिलाओं पर, हर प्रकार के लोगों को वहां उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है। तो कुंभ की सफलता इनको पच नहीं रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वहां पर बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा लोगों का स्नान भी हो रहा है, अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की पूरी टीमें वहां लगी हुई हैं, सफाई व्यवस्था भी अच्छी है। मैं 2 दिन वहां रहा हूं, मैंने स्वयं देखा है। इसलिए केवल और केवल जो इनका शुरू से एक एजेंडा रहा है कि हमारे धार्मिक स्थलों को, हमारी धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना, उनको नुकसान करना, उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। चल रहा है जल को लेकर, संगम को लेकर बवाल चल रहा था। देखिए, इतने करोड़ों लोगों ने वहां संगम में डुबकी लगाई है, आस्था के पथ पर लोग गए हैं और मैं भी स्वयं वहां मैंने जाकर देखा है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें वो लोग कर रहे हैं जो लोग कभी भी हमारे आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा को, हमारे धार्मिक स्थानों को, तीर्थों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं, इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं। और हम तो यहीं से मां गंगा का रोज 200 क्यूसेक से ज्यादा पानी यहां से जा रहा है और आपके सामने से जा रहा है, हरिद्वार से जा रहा है। सर, पहले ममता बनर्जी, उसके बाद अखिलेश यादव का अभियान चलाया है। देखिए, In Faridabad, Haryana, Chief Minister Nayab Singh Saini held a roadshow in Ballabag to support the BJP's mayoral candidate Praveen Batra. The witnessed a significant turnout as Saini campaigned for Batra, emphasizing BJP's vision and commitment to the city's development ahead of the elections. Expressing confidence in BJP's victory in the local body elections, Saini stated that the party would win by a big margin. Now, further thanked the people of Faridabad for their support and their decision to give a strong mandate to the BJP. Regarding the Haryana government's manifesto, he also assured that it would address both statewide and local issues. He reiterated BJP's promise of providing rupees 2,100 to women and confirming that funds would be allocated in the upcoming budget session before implementation. Criticizing Congress, he accused the party of being inactive on the ground on claim that, like in Delhi, Congress would be reduced to zero in Haryana. देखिए, जबरदस्त माहौल पूरे हरियाणा के अंदर कमल के फूल को लेकर के है और हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के सभी चेयरमैन प्रत्याशी वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। हरियाणा के लोगों में एक बड़ा उत्साह, जोश है। आज मैं दूसरे दिन के प्रचार के लिए यहाँ बल्लभगढ़ के अंदर आया हूँ। बल्लभगढ़ में हमारे मूलचंद जी शर्मा और हमारी मेयर प्रत्याशी बहन जी जो बड़े मार्जिन के साथ लोगों का जो उत्साह, जो जोश देखने को मिल रहा है। हम मार्केट से जब निकले हैं, लोगों ने स्वयं बाहर दुकानों से आकर के, आम लोगों ने भी इस रोड शो का स्वागत किया है। मैं फरीदाबाद के सभी महानुभाव का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि 2 मार्च को बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। संकल्प पत्र आने वाला है, क्या जिला वाइज उसको देखेंगे या पूरे हरियाणा का एक जैसा संकल्प पत्र होगा? नहीं, देखिए, हमारा संकल्प पत्र हरियाणा का भी होगा, स्थानीय भी होगा। स्थानीय जो समस्याएं हैं उसका अलग से हमारे सभी प्रत्याशी उस संकल्प पत्र को बनाएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से विकास कार्यों को करने के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका एक संकल्प, देखिए, जबरदस्त माहौल पूरे हरियाणा के अंदर कमल के फूल को लेकर के है और हरियाणा के अंदर बहुत बड़े मार्जिन से नगर निगम, नगर परिषद और
AAP leader Gopal Raj announced that during the Legislative Party meeting, it was unanimously decided that Atishi will be leader of opposition in the Delhi Assembly. He praised Atishi for her service to the people of Delhi as Chief Minister during challenging times. Rai also emphasized that AAP will fulfill its role as a responsibility and healthy opposition in the Assembly. विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव सभी विधायकों ने पास किया है। इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में संजीव झा जी ने रखा था और कुलदीप विधायक दल की मीटिंग के अंदर आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस प्रक्रिया के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से डॉक्टर संदीप पाठक को पार्टी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया था। उनकी उपस्थिति में आज आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता की चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। आज की इस बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को आम आदमी पार्टी विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। जो पदेन क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका विधायक दल के नेता के रूप में आतिशी जी निर्वहन करेंगी। सर्वसम्मति से ये At the Unicorn Conclave, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath highlighted the massive turnout at the Prayagraj Mahakumbh, stating that 62 crore devotees have visited so far. He described it as one of the rarest events of the century. Emphasizing its significance, he also underscored India's ancient tradition of organizing Mahakumbh at 4 important locations, reflecting the country's deep-rooted spiritual and cultural heritage. तो मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से और वह भी उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक और प्रयागराज की धरती में जब हम कुंभ की बात करते हैं, महाकुंभ या कुंभ का इतिहास हमें इस बात को
सोचने के लिए मजबूर करता है कि भारत की ऋषि परंपरा में भारत के अंदर 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इन आयोजनों को प्राचीन काल से ही आयोजित करने की एक व्यवस्था दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तराखंड के हरिद्वार में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में और महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबकेश्वर में ये 4 पवित्र आयोजन होते हैं। भारत की ऋषि परंपरा इस बात को के बारे में बहुत पहले से ही उनके मन में ये बात जरूर रही होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति से कुछ कटा हुआ महसूस करेगा, तो उन स्थितियों में उन्हें Union Minister Gajendra Singh Shekhawat highlighted Prime Minister Modi's discussion on the major healthcare challenge in India during the latest episode of Mann Ki Baat. Prime Minister Modi urged citizens to reduce their oil consumption and food by 10% to promote better health. Shekhawat emphasized the growing concern of obesity, warning that India is at risk of becoming the diabetes capital of the world. आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। देश के ऐसे ख्यातनाम खिलाड़ियों के व्यक्तिगत प्रसंग और उनसे प्रेरणा देश ले सके, इस दृष्टिकोण से उनके वक्तव्य व्याख्यान कराए। डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे प्रख्यात कार्डिक सर्जन की राय उसमें हम सबके सामने साझा करवाई और देश का आह्वान किया कि हमें अपने भोजन में से 10% खरीद के समय ही अपने खाद्य तेल के उपयोग को कम करना है। ओबेसिटी के, मोटापे के 2 मुख्य कारण एक भोजन में तेल का उपयोग और दूसरा चावल, गेहूं और चीनी का उपयोग। दुर्भाग्य से इस देश में जहां परंपरागत रूप से मोटे अनाज का सेवन किया जाता था, वहां धीरे धीरे गेहूं और चावल का उपभोग अत्यधिक बढ़ने के कारण से भी देश में मोटापा बढ़ा है और मोटापे के कारण से भारत आज विश्व की डायबिटिक कैपिटल बनने की दिशा में जा रही है। ऐसी परिस्थिति में देश का मार्गदर्शन करते हुए, आह्वान करते हुए उन्होंने हम अपने आपको फिट कैसे रखें, फिट इंडिया मूवमेंट की बात की है। गेहूं चावल की निर्भरता को कम करने के लिए देश में मिलेट के उपयोग पर एक बड़ी मुहिम प्रारंभ की है। कैंसर जिसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण पेस्टिसाइड्स जो है, रसायनों का रेजिडुअल रहना है, उससे हटाने के लिए प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। तो देश के ओवरऑल स्वास्थ्य की चिंता करने के साथ साथ में हमारे देश की धरोहर, हमारा जो Union Minister Dharmendra Pradhan, speaking from Angul, Odisha, thanked Prime Minister Narendra Modi for highlighting key national issues in the 119th episode of Mann Ki Baat. He noted India's contributions to emerging technologies like space, rocketry and AI. PM Modi also launched a public awareness program on obesity, urging people to reduce oil consumption by 10% and educate 10 others on healthy eating. Inspired by this, Pradhan pledged to take up the challenge himself. Prime Minister also spoke about Khelo India, wildlife conservation and importance of sports. Additionally, he discussed Pariksha Pe Charcha, helping students manage exam stress across the different states, and Pradhan emphasized the need for collective efforts in promoting health, education and India's growth. मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा देश की ओर से। उन्होंने आज 119वां मन की बात की एपिसोड में 3 विषयों पे उल्लेख किया, 4 विषयों पे उल्लेख किया। एक तो देश की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भारत की भूमिका क्या है, स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट की हो, एआई की हो,
कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी क्या हो रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, अपना अनुभव शेयर किया। वैसे ही देश की नई पीढ़ी में ओबेसिटी ना हो जाए, नागरिकों को ओबेसिटी के ऊपर सजग करने के लिए उन्होंने आज एक नई जन अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने आज एक नई पीढ़ी में ओबेसिटी ना हो जाए, नागरिकों को ओबेसिटी के ऊपर 4 विषयों पे उल्लेख किया। एक तो देश की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें भारत की भूमिका क्या है, उस स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, रॉकेट की हो, एआई की हो। In Bhopal, Madhya Pradesh, during 119th episode of Mann Ki Baat, State BJP President and MP V.D. Sharma expressed gratitude to Prime Minister Modi for dedicating 2 days to the state. He highlighted that it is a matter of great fortune for Madhya Pradesh that the Prime Minister is investing significant time in its development and engaging in direct informal discussions. देने वाले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उनके लिए बहुत पूरा प्रदेश और भाजपा के कार्यकर्ता उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि 2 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को समर्पित किए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना लंबा समय देकर के सीधे अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों का नहीं देने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उनके लिए बहुत पूरा प्रदेश और भाजपा के कार्यकर्ता उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि 2 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को समर्पित किए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के विकास को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना लंबा समय देकर के सीधे अनौपचारिक बातचीत भी करेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य हम सब लोगों का नहीं देने वाले हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, उनके लिए बहुत पूरा प्रदेश और भाजपा के कार्यकर्ता। Those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.